Okay, so now we are done with chapter 1 and chapter 2. So now let's come to next chapter, chapter 3, charge of GST. Am I clear? So let's come to first question. I hope you're with me. Again कह रही हूँ, ये वाला जो नोट है ये मेरी वेबसाइट पे www.cameetamangal.com आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए and then you can view this lecture along with the notes. And this is nothing but this is a scanner. It's all the questions from May 18 paper, May 18 mock test papers, May 18 practice paper, May 18 RTP as well as November 18 RTP, November 18 mock test papers. तो मैं कुछ 93 questions gather किए with solutions. So I am here to discuss all the questions with you and I'll be discussing all indirect questions. Direct questions जो है कि बॉस definition दो तो that we're not going to discuss over here. Am I clear? Because 93 questions is really big target. थोड़ा सा फास्ट रहेगा because it's a sort of revision lecture. चलो, Messrs. X and Sons, tax consultant of Jensen Limited, have advised that RCM is applicable only to services. Examine the validity of the advice given by Messrs. X and Son. Is it correct? X and Sons tax consultant किसके? Jensen के, और X and Sons बोलते हैं कि RCM is applicable only in case of services and not in case of goods. No, it is an incorrect statement. RCM is applicable for both. In case of goods also as well as in case of services also. Difference ये है, मैं बताती हूँ कि लोगों को कंफ्यूजन क्यों आया. हमने सर्विसेज की लिस्ट तो याद कर ली, जहां जहां RCM लग रहा है ना हमने उसकी लिस्ट तो याद कर ली. गुड्स की लिस्ट याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्वेश्चन में दे देते कि इस गुड्स के केस में क्या लगेगा, RCM लगेगा. तो मे बी दैट मेक द माइंडसेट. नो, बट RCM इज एप्लीकेबल ऑन बोथ. Section 9 जो है, Section 9, I hope you're with me, 9 subsection 3 and 5 subsection 3. 9 talks about intrastate supply and Section 5 of IGC talks about interstate supply. और दोनों ने बोला है कि RCM is applicable on goods as well as on services. Am I clear? Can I go in? Now this second question, I really find this question a very important question from exam point of view. थोड़ा से इस question में एक point I will tell कहाँ confusion arise होता है. Let's understand this. Royal Sweets and Company, Delhi, a registered supplier, has furnished details of the following few transactions which took place in the November month में जो transactions हुए हैं. Royal Sweet and Company, a registered supplier, he has made पेमेंट 11th नवंबर को पेमेंट मेड टू एन एडवोकेट. उन्हें पेमेंट किया है, मतलब यहां पे एडवोकेट ने सर्विसेज. सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंड करो ट्रांजैक्शन में सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है. आई होप विथ मी. सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है. अगर पेमेंट किया है, किसको किया है, एडवोकेट को किया है. किसको किया है, एडवोकेट को किया है. तो एडवोकेट कौन हो गया, सप्लायर हो गया, एंड रॉयल कंपनी कौन हो गए, रेसिपिएंट हो गए. Am I clear? पेमेंट मेड टू एन एडवोकेट इन दिल्ली. इनवॉइस की डेट दी, अमाउंट का डेट दिया है. सेकेंड, पेड सेटिंग फी टू डायरेक्टर. तो अगर अगेन डायरेक्टर को क्या दिया है, सेटिंग फीस दिया है, मतलब डायरेक्टर कौन हो गया, सप्लायर हो गया. डायरेक्टर कौन हो गया, सप्लायर हो गया. एंड अगेन रॉयल कंपनी कौन हो गई, रेसिपिएंट हो गई. तो पेड सेटिंग फी टू डायरेक्टर फ्रॉम हरियाणा for meeting held in Delhi on 15th of October. Invoice का डेट क्या है, 15th October. अमाउंट कितना है, 75,000. जीएसटी के रेट क्या देके रखे हैं, CGST, SGST 99%, IGST 18%. You are required to compute GST as a case may be payable for the month of November along with the time of supply. बस जीएसटी लाइबिलिटी किसकी आएगी, तो पहले एडवोकेट पे आते, एक एक करके पॉइंट उठाएंगे. एडवोकेट के केस में इफ यू रिमेंबर, एडवोकेट के केस में क्या लगता है, RCM लगता है. दैट मीन्स हु इज गोइंग टू पे टैक्स, रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे टैक्स. मतलब टैक्स विल बी पेड बाय रॉयल एंड कंपनी. RCM लगेगा. Am I clear? RCM. और क्योंकि सर्विसेज है तो अगर मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो मेरे को सेक्शन 13 में जाना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. आई होप यू गेटिंग मी.
सेक्शन 13 आरसीएम लगने वाला है, तो यहां पे मुझे टाइम ऑफ सप्लाई एज पर आरसीएम निकालना पड़ेगा। विथ मी, एक एक चीज करके चलते। तो देखो, पहली बात तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ आरसीएम कैसे निकलेगा। फर्स्ट लेट्स रीड बोथ द ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन क्या था, एडवोकेट का। दूसरा ट्रांजैक्शन किसका है, डायरेक्टर का। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, शेड्यूल 3 में पढ़ाया है। अगर एम्प्लॉय है, किसको सर्विसेज दे रहा है, एम्प्लॉयर को दे रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर हमने वहां भी डिस्कस किया था डायरेक्टर के केस में, क्या डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज है या एम्प्लॉयज नहीं है। तो इट डिपेंड कौन से टाइप के डायरेक्टर हो। अगर आपसे बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हो और आप बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के मीटिंग के फीस लेते हो, तो यू आर नॉट एन एम्प्लॉय। आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, सप्लायर हो जाओगे। और आप किसको सर्विसेज दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो। तो अगर डायरेक्टर किसको सर्विसेज दे रहा है, कंपनी को दे रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। मतलब ये दोनों ट्रांजैक्शंस में, एडवोकेट के केस में भी एंड डायरेक्टर के केस में भी क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। मतलब टैक्स कौन पे करने वाला है, रॉयल एंड कंपनी टैक्स पे करने वाली है। और अगर आरसीएम लगेगा तो पहले क्या निकालो, टाइम ऑफ सप्लाई। कोई क्वेश्चन में बोल के टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। देखो नोट्स, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट टू एनी बिजनेस एंटिटी located in taxable territory is a notified service on which tax is payable under RCM basis. Second, service supplied by director of a company to a said company is a notified service on which tax is payable under RCM. मतलब दोनों ट्रांजैक्शन में टैक्स कौन पे करने वाला है, टैक्स रिसिपेंट पे करने वाला है। आई होप यू विथ मी। अब क्वेश्चन ये आता है, जब रिसिपेंट को टैक्स पे करना है तो रेसिपिएंट का पहले टाइम ऑफ सप्लाई निकालो और उसके हिसाब से क्या निकालेंगे, ड्यू डेट ऑफ पेइंग द टैक्स। अगर सपोज अगर अक्टूबर मंथ है तो अक्टूबर मंथ का अगर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई निकला तो मुझे टैक्स का पे करना है बाय नेक्स्ट मंथ के 20th तक, 20th ऑफ नवंबर तक। मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के बीच में जो भी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा उसका ड्यू डेट ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट इज बाय 20th ऑफ नवंबर। तो मुझे टाइम सप्लाई निकालना है क्योंकि आरसीएम लगने वाला है, क्योंकि सर्विसेज का है तो मुझे सेक्शन 13 लगाना पड़ेगा और सेक्शन 13 ने 2 डेट्स दी, व्हिचएवर इज अर्लियर। सेक्शन 13 क्या बोलता है, द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ आरसीएम 2 डेट्स व्हिच इज अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड। से रेसिपिएंट पेमेंट करने वाला है ना तो उसका बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, या उसकी बुक्स में क्या होगी, एंट्री। डेबिट मतलब पेमेंट की एंट्री होगी। आई होप यू गेट योर पॉइंट। तो वो डेट या 61th डे से क्या लिखा है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डे का मतलब 61th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब मुझे 3 डेट्स में पहले देखना पड़ेगा, date of payment and date of invoice, not even date of invoice, 61th day from date of invoice। date of payment में बुक्स में पेमेंट की एंट्री, बुक्स में पेमेंट की एंट्री और बैंक में डेबिट की एंट्री, बैंक में डेबिट की एंट्री। ये 2 डेट में से कोई भी एक डेट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये डेट या 61th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अब हमने क्या समझ लिया, प्रोविजन समझा है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेट्स देके रखी है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि इनवॉइस कब रेज किया है, 7th ऑफ जुलाई को। फर्स्ट की बात करें, इनवॉइस कब रेज किया है, 7th ऑफ जुलाई को रेज किया है और पेमेंट कब किया है, 11th ऑफ नवंबर। पहले ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। इनवॉइस कब रेज किया है, 7th ऑफ जुलाई को रेज किया है। डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 11th ऑफ नवंबर। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, date of invoice is what, 7th of July and date of payment क्या देखे रखा है, 11th of November। अब मेरे को 60 डेज कहां से काउंट करने, डेट ऑफ इनवॉइस, इनफैक्ट डायरेक्टली 61th लो।
तो 7 जुलाई से कभी वो दिन काउंटिंग में यूज नहीं करोगे, 8 जुलाई से स्टार्ट करो। एम आई क्लियर? 8 जुलाई से आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। आई होप यू विथ मी। मैंने सही डेट ली है, लेट मी जस्ट चेक द डेट अगेन। क्या 7th ऑफ जुलाई, आई होप यू विथ मी। तो क्या आएगा, I hope with the time of supply of the service is a date immediately following that since the date is issue is 6th of September. Counting करते हैं, let's count. 7 जुलाई, मैं ना थोड़ा सा ना अभी भी पुराने तरीके से काउंटिंग करती हूँ। 7 जुलाई को इंक्लूड मत करना, 8 से स्टार्ट करना। 61th डे, मेरी एक फिंगर पे 3 होते हैं तो मेरे एक हाथ में 15 काउंटिंग हो जाती है, राइट? 7 जुलाई को इग्नोर करो, 8 से स्टार्ट करो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अगस्त चल रहा है। 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th. 6th of September को मेरा 61th डे होता है। 6th of September को मेरा कौन सा डे 61th डे हो जाता है? हमें क्लियर? 6th of September, 6th of September और 11th of November, whichever is earlier में 6th of September अर्ली हो जाएगा। हमें क्लियर? तो अगर सिर्फ 6 ऑफ सितंबर मेरा क्या हो गया, अगर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है तो मेरा ड्यू डेट ऑफ पेइंग टैक्स क्या आएगा, सितंबर का नेक्स्ट मंथ में 20th ऑफ अक्टूबर। तो मेरा पहले ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकला, 20th ऑफ अक्टूबर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कैन आई गो इट? अब सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। आई होप विद मी। इनवॉइस कब रेज हुआ है? 15th ऑफ अक्टूबर को रेज हुआ है। पेमेंट कब किया है? 20/11 को। तो बट नेचुरली अगर मैं 60 डेज काउंट करूंगी तो वो ज्यादा ही होंगे, तो मेरा पेमेंट मतलब 20/11 मेरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 20/11 मेरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और 20/11 अगर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है तो 20/12 मतलब दिसंबर विल बी माई टैक्स पेमेंट की डेट। आई होप यू आर विथ मी। अब यहां पे अंडरस्टैंड करो, हाँ, मेरा फर्स्ट सिनेरियो में मेरा टाइम सप्लाई क्या आया, 6th ऑफ सितंबर और मेरा ड्यू डेट क्या था, 20 ऑफ अक्टूबर। तो मैंने पेमेंट कब किया है, मैंने पेमेंट किया है 11th ऑफ नवंबर को। मुझे पेमेंट कब करना चाहिए था, 20 ऑफ अक्टूबर को मेरे को टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए था, पर मैंने पेमेंट कब किया, 11th ऑफ नवंबर को किया है। मतलब मैंने डिले किया है टैक्स की पेमेंट में। तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। किस तारीख से, ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से लेके टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। मतलब मेरे को 21 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर का क्या काउंट करना पड़ेगा, मुझे डेज काउंट करने पड़ेंगे और 18% पर एनम से मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तुम गलती करके आ सकते हो। हमें क्लियर? और सेकंड सिनेरियो में तो मेरा डिले नहीं है तो मुझे कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है। तो मेरी लायबिलिटी क्या आ रही है टैक्स की, देखो सीधे सॉल्यूशन। फर्स्ट केस में उन्होंने क्लियरली बोल दिया, हमें फर्स्ट केस में क्लियरली क्या बोल दिया, एडवोकेट भी दिल्ली में है, मैं भी दिल्ली, मतलब क्या है, इंट्रा है। तो 1,25,000 का कितना परसेंट, 1,25,000 कितना परसेंट, 9% CGST है, 9% SGST विल कम टू 11,250 ईच। हमें क्लियर? और मैंने क्या किया है, डिले किया है पेमेंट करने में। कितने अमाउंट का डिले हुआ है, 22,500 का डिले किया है। कितने तारीख से, क्या डेट से बॉस, मुझे पेमेंट कब करना था, 21 ऑफ, कब करना था मुझे पेमेंट, टेल मी, मुझे पेमेंट कब करना था, 20th ऑफ अक्टूबर को करना था। और मैंने पेमेंट कब किया है, 11th ऑफ नवंबर को किया। मतलब 21 अक्टूबर से 11 नवंबर तक मैंने क्या किया है, डिले किया है। तो मुझे कितने दिन का डिले हुआ है, 22 डेज से 21 अक्टूबर ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब
3, 6, 9, 10, 11 डेज तो अक्टूबर मंथ के एंड 11 डेज नवंबर मंथ के, मतलब 22 डेज का क्या हो गया है, डिले हो गया है. तो मुझे 22 डेज के लिए 18% पर एनम से 22,500 के मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, विच कम्स टू 244 रुपीज. यहां तुम गलती करोगे, तुम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके नहीं आओगे, विच इज रॉन्ग. Am I clear? एंड सेकेंड केस में मैंने कोई डिले नहीं किया है, तो मुझे सेकेंड केस में मुझे क्या पे करना था, मुझे IGST ही पे करना था. कितना अमाउंट से, 13,500 अमाउंट से, क्योंकि मैं लाइबिलिटी कितना है, 75,000. Am I clear? Am I clear? Is this question clear? Very clear. This is one of the important question from exam point of view. Am I clear? Can I go ahead? Now come to third question. Come to third question. With reference to the provision of GST law, briefly explain the following question. This is already discussed. ये RTP कौन से अटेम्प्ट का है, नवंबर 18 का, पर ये इंपॉर्टेंट है ए वाला. क्यों? क्योंकि ए वाले में अमेंडमेंट आया है. क्या लिखा है, इनकम इज रिसीव बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट from renting of immovable property to whom, to गणपति मौर्य प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, जिसका पिछले साल का टर्नओवर कितना है, 18 लाख रुपीस. सुनना, प्रोविजन क्या था और क्या हो गया है. अगर एक बिजनेस एंटिटी किससे सर्विसेज ले रही है, गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रही है. कौन सी सर्विसेज, एनी सर्विसेज, तो करंट ईयर में टैक्सेबल है. पर अगर पिछले साल का मेरा टर्नओवर कितना है, अप टू 20 lakhs, तो करंट ईयर में अगर मैं जो भी सर्विस लूंगी उस पर जीएसटी क्या कर दिया है, एग्जम्प्ट कर दिया, एक्सेप्ट ओनली वन, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर मेरा पिछले साल का टर्नओवर 2 लाख हो या 2 करोड़ हो, पर अगर मैंने करंट ईयर में गवर्नमेंट से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज ली है, तो उस पर जीएसटी तो देना ही देना है, बात खत्म. If I am taking with services, renting of immovable property की services from whom, from government, it is always taxable. बात खत्म. Irrespective of your fact whether your previous year's turnover is 2 lakhs or 20 lakhs or 2 crores. Am I clear? अब इसमें amendment क्या है? Renting of immovable property was always taxable और इस पे FCM लगता था, मतलब forward charge mechanism लगता था, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था, गवर्नमेंट को सप्लायर. यहां पे अमेंडमेंट आया है, इनका कहना है अगर रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो RCM लगेगा. तो क्या लगेगा, RCM लगेगा. और क्वेश्चन ने क्लियरली बोल के रखा है कि गणपति मौर्य प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, मतलब यहां पे गणपति मौर्य प्राइवेट लिमिटेड इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर RCM. अगेन सेइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा. Am I clear? Is the first one clear? Second one. Mr. Vivek Goyal, director of A to Z Private Limited Company, has received sitting fees amounting to rupees 1 lakh from A to Z for attending the board meeting. पहली बात हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके शेड्यूल 3 में, एम्प्लॉयज गिविंग सर्विसेज टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. But now question comes whether directors are employees of the company or not. So it depends upon which type of director if you are. If an executive director, if you're a whole-time director, then that means you are employees. And if employee आप हो तो GST की बात ही नहीं आती. पर अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो, अगर आप सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हो, तो इस केस में आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, जीएसटी लगेगा और इसके बाद RCM लगेगा. क्लियरली नोटिफाइड है, तो इस पे कौन टैक्स पे करेगा, A to Z कंपनी टैक्स पे करेगी. Am I clear? Am I clear? Is क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? Can I go ahead? Is क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? आगे बढ़े. Come to next question, question number 4. देखो अगेन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ ही रहा है. स्टेट विद रीजन person liable to pay GST in each of the following independent cases, assume recipient is located in taxable territory. Rental income received by Tamil Nadu state government from renting an immovable property to Manappa Private Limited
टर्नओवर उसका कितना है 22 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. सेम थिंग, अगर मैंने कौन सी सर्विसेज ली है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ली है, किससे ली है, गवर्नमेंट से ली है, टैक्स लगेगा. गेम ओवर. क्वेश्चन ही आता है टैक्स कौन पे करेगा. तो अगर रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, मतलब आरसीएम लगेगा. और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, मतलब एफसीएम लगेगा. और यहाँ पे क्योंकि रेसिपिएंट का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना है 22 lakhs है, इसका मतलब करंट में रजिस्टर्ड होगी ही होगी, इसलिए यहाँ पे टैक्स कौन भरेगा, मनपा प्राइवेट लिमिटेड पे करेगा अंडर आरसीएम. लेट्स रीड द आंसर. Notification number so and so as amended that RCM is applicable in case of services supplied by state government by way of renting of immovable property to a person registered under CGST Act. Thus GST is payable by Manappa Private Limited being registered in the present case because उसका टर्नओवर कितना है 20 लाख से ज्यादा है. और हमारा GST लॉ क्या बोलता है, as per section 22 क्या बोलता है, if your turnover exceeds 20 lakhs you will have to get registered yourself. Am I clear? Can I go ahead? Next one, second point. Legal fees received by Mr. Shushruth, a senior advocate from Mrs. Tattva Trading Company having turnover of 50 lakhs in the preceding financial year. I hope you are with me. आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है. सुश्रुत कौन है, सीनियर एडवोकेट. उन्होंने सर्विस किसको दी है, तत्व ट्रेडिंग कंपनी को दी है. मतलब तत्व कौन है, यहाँ पे रेसिपिएंट है, एंड सीनियर एडवोकेट कौन है, सप्लायर है. यस और उनका टर्नओवर कितना है 50 lakhs. बॉस यहाँ पे जीएसटी लगेगा एंड जीएसटी विल पेड बाय रेसिपिएंट. आरसीएम इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. आई होप यू आर गेटिंग. यस और नो. जीएसटी ऑन लीगल सर्विसेज इज सप्लाइड बाय सीनियर एडवोकेट to any business entity located in taxable state is payable under RCM. Am I clear? Am I clear? Yes. So by this we are done with chapter 3. और अगर आपने देखा होगा chapter 3 में 3 लोगों को फोकस किया. एक तो डायरेक्टर को फोकस किया ये लोग ने, एक एडवोकेट को फोकस किया ये लोग ने, और एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को फोकस किया. तो इन 3 में से 1 बेयर मिनिमम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा. यू कैन इवन थिंक ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज ऑफ एडवोकेट, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा. आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, फिर उसके जीएसटी का अमाउंट निकालो, फिर लेट हो गया तो इंटरेस्ट निकालो. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 as well as question number 3 दोनों ही important है from exam point of view. Am I clear? Can I go back to the next chapter? Okay. So now let's come to next chapter, chapter 4, examination from GST. अब हम chapter 3 करके आए हैं. What is chapter 3? Charge of GST. अब हम नया chapter कर रहे हैं, chapter 4. एग्जामिनेशन अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एक पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर देंगे और आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेड है या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूएशन में वो वैल्यू अमाउंट में नहीं आएगा. Am I clear? तो कम फर्स्ट क्वेश्चन. आयुष्मान मेडिकल सेंटर मतलब हेल्थ केयर सर्विस की बात चल रही है. किसकी बात चल रही है? हेल्थ केयर सर्विसेज की बात चल रही है. क्वेश्चन पढ़ते से ही टॉपिक दिमाग में आ जाना चाहिए. हेल्थ केयर सर्विसेज, a clinical establishment offers the following services. Offers the following services. Reiki healing treatment. Such therapy is not recognized system of medicine in terms of Clinical Establishment Act. से अंडरस्टैंड करो हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए क्या बोला था. उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज को डिफाइन किया है और उसमें उन्होंने बोला है कि डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, क्योर करना, केयर करना. इनफैक्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस डन बाय होम क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स. इनके थ्रू किया गया है तो वो एग्जम्प्टेड है. बट इट डज नॉट इंक्लूड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी. इट विल इंक्लूड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ओनली व्हेन वो क्यों किया गया है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हुआ है, बाय बर्थ आपको कुछ इशू है, तो वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट होगा. Am I clear? तो अब रेकी की बात चल रही है. जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ट्रीटमेंट किसके थ्रू होना चाहिए? बाय अ मेडिसिन विच इज रिकग्नाइज्ड इन इंडिया. रेकी इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन इंडिया, इसलिए रेकी के ऊपर जीएसटी लगेगा. 10 lakhs पे जीएसटी लगेगा.
सेकेंड पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, मतलब प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर जीएसटी लगेगा ओनली कब नहीं लगेगा, जब इट इज बाय बर्थ आपको कोई इश्यू हो, किसी की नाक बाय बर्थ ही नहीं है तो उसका तो राइट है ना, तो नाक लगा के दोगे कि नहीं लगा के दोगे, तो वो प्लास्टिक सर्जरी विल बी अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। या किसी पे एसिड अटैक हुआ है, किसी पे एक्सीडेंट हो गया है तो वो करवाने जा रहे हैं, तो वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है। पर जो बॉलीवुड के स्टार्स एक्ट्रेसेस जो ऑपरेशन करवाते हैं विल नॉट कम अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज। एम आई क्लियर? दे गो फॉर ब्यूटिफिकेशन, उनका इंटेंशन क्या होता है? ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना। तो प्लास्टिक सर्जरी कितना बोला है? 20 lakhs पर आगे क्या बोला है? One such surgery was conducted to repair cleft lip of a newborn baby और उसके लिए कितना चार्ज किया? 1 लाख। तो 20 लाख में से 1 लाख इज एग्जम्प्टेड, 19 lakhs इज टैक्सेबल। तो यहाँ पे पूरा 10 lakhs टैक्सेबल है, यहाँ पे 19 lakhs इज टैक्सेबल। आगे, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज to transport critically ill patients from distant location to Ayushman Medical Center. Ambulance services is also a part of health care services और कोई भी टाइप का एम्बुलेंस is exempted, मतलब ये पूरा exempted है। Am I clear? Exempted, am I clear? Fourth point, alternative medical treatment by way of Ayurveda। कौन सा ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं? Ayurveda and such is recognized. Ayurveda is recognized, so recognized के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, no GST over here। तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे 19 lakhs का जीएसटी है, यहाँ पे पूरे 10 lakhs का जीएसटी है। आई होप यू विथ मी। और आगे क्या बोल दिया है? ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी। देन आगे लिखा है Ayushman Medical Center also operates a cord blood bank which provides services in relation to preservation of stem cells। ये भी हमने पढ़ा एग्जामिनेशन की लिस्ट में कि अगर आप cord blood bank की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए जो कंसिडरेशन लगाता है उस कंसिडरेशन के बाद जीएसटी हैज बीन exempted। You're required to compute the value of a supplier's GST liability whether C or S or I if any in the light of relevant GST provision। ऑल द सर्विस प्रोवाइड बाय, यहाँ क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया कि सब क्या है? इंट्रा है। इंट्रा पे क्या लगता है? CNS लगता है, मतलब 9% लगेगा। तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 10 lakhs। और हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना है? इन फर्स्ट केस 10 lakhs, इन सेकेंड केस 19 lakhs। एयर एम्बुलेंस केस में एग्जम्प्टेड है, आयुर्वेदा एग्जम्प्टेड है, मतलब टोटल वैल्यू सप्लाई कितना है? 29 lakhs। और क्लियरली बोल दिया है कि इट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, मतलब इसमें जीएसटी एडेड नहीं है, मतलब 29 lakhs के ऊपर अलग से 9% लगाओ और सी एंड अलग से 9% लगाओ एस। और क्लियरली नोट लिख के आना, ये आपको मुझे मालूम है कि कॉर्ड ब्लड बैंक की सर्विसेज क्या है? एग्जम्प्टेड है। अज्यूम करो पेपर चेकर कुछ भी आता नहीं है, यू आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कैन आई गो एंड आगे बढ़ू? कम टू सेकेंड क्वेश्चन, कम टू सेकेंड क्वेश्चन। केसर महाराज, a registered supplier, gave a classical dance performance। क्लासिकल डांस मतलब क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ के दिमाग में आ जाना चाहिए कि परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आर्टिस्ट। किसकी बात चल रही है? आर्टिस्ट की बात चल रही है। एंड आर्टिस्ट की सर्विसेज एग्जम्प्टेड कब होगी? जब वो क्या करना चाहिए? परफॉर्मेंस करना चाहिए। मतलब आइदर शुड बी डांस or it should be music or it should be drama and either it should be classical। क्या होना चाहिए? या तो should be classical होना चाहिए, या तो I hope you're getting me, क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्लासिकल या किसी स्टेट का। Am I clear? तो क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस है और कंसेशन कितना मिला है? अप टू रुपीज 1.5 lakhs। कंसेशन क्या मिला है? अप टू रुपीज 1.5 lakhs मिला है। तो इस 1.5 lakhs के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड अगर आप कैसे ऐड कर रहे हो? एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऐड कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का,
मतलब इफ यू आर परफॉर्मिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर तो जीएसटी हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो वापस रिपीट करूं, आर्टिस्ट की बात चल रही, आर्टिस्ट कब एग्जाम्प्टेड है? जब परफॉर्मेंस कर रहे, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। परफॉर्मेंस डांस में होता है, परफॉर्मेंस म्यूजिक में होता है, परफॉर्मेंस ड्रामा में होता है, एंड परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल और फोक डांस। और पैसे कितने आने चाहिए? अप टू ₹1.5 lakhs। तो अप टू ₹1.5 lakhs अब आपको कंसेशन आया तो जीएसटी नहीं लगेगा। एंड इफ यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट प्रोडक्ट तो जीएसटी लगेगा, भले आपको ₹1 मिले या 15,000 मिले या 1.5 लाख मिले। ये हमारा प्रोविजन हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। केसर महाराज, a racist supplier, gave a classical dance performance in an auditorium. Okay. The consideration is charged for the said performance 1,48,500. तो मार्क करते जाओ। पहली बात तो क्लासिकल डांस है, पैसे कितने आए? 148,500. Is Kesar Maharaj liable to pay GST on the consideration received for the said performance if such performance is not a promotion of any such product? मतलब he is not the brand ambassador also. तो बॉस, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो, आप क्लासिकल डांस कर रहे हो, मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हो, किस फील्ड में? क्लासिकल में। कितने पैसे लिए? अप टू ₹1,50,000। तो अप टू ₹1,50,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा, इट हैज बीन एग्जम्प्टेड। तो पहला आंसर पढ़ते हैं। सी क्या लिखा है? नोटिफिकेशन एग्जाम्स सर्विस बाय एन आर्टिस्ट by your performance in folk or classical, in music, dance or theater up to kitna? Up to 1.5. However, exemption shall not apply to brand ambassador. In view of the above provision, services provided by Kesar Maharaj are exempt from GST as consideration for the classical dance performance has not exceeded ₹1,50,000. Hence GST liability is nil. यहाँ पे am I clear? आगे दूसरे क्वेश्चन पर तो ऊपर Will your answer be different? हमने एक आंसर दे दिया, अब आगे पूछ रहे will your answer be different if Kesar Maharaj is a brand ambassador of a food product and a first performance is a promotion for such food product? Yes. अगर वो brand ambassador है तो ये एग्जामिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगा. He'll have to pay tax. He'll have to pay GST irrespective of the fact whatever is the consideration amount. तो क्या लिखा है? If Kesar Maharaj is a brand ambassador of a product and a forced performance is for the promotion of that product, he will have to pay GST and not exemption will not be applicable. Am I clear? Am I clear? Can I go ahead? आगे बढ़ू. Third or second point. The dance performance given by Kesar Maharaj is not a classical dance performance but a contemporary Bollywood style. Boss, it should be performance. It should be classical or it should be folk. Up to 1.5 and not a brand ambassador. 4 conditions satisfy होनी चाहिए. कौन से 4? परफॉर्मेंस होना चाहिए, फोक या क्लासिकल में होना चाहिए, अप टू 1.5 होना चाहिए एंड ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए. अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई है तो एग्जाम्पशन है, नहीं तो एग्जाम्पशन नहीं है. अब यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आप बॉलीवुड डांस कर रहे हो तो टैक्स लगेगा. एंड थर्ड, कंसिडरेशन चार्ज by Kesar Maharaj for the classical dance performance 1,60,000. बस परफॉर्मेंस तो है, क्लासिकल तो है, पर अमाउंट कितना है? 1,60,000, मतलब एक्सीड्स 1,50,000. तो एग्जामिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगा. और एग्जामिनेशन एप्लीकेबल नहीं है मतलब फुल 1,60,000 पे जीएसटी लगेगा. ऐसा मत करके आ जाना 1.5 लाख एग्जाम कर दो, 10,000 पे जीएसटी लगा के आ जाओ. नो, आइदर यू आर इन द लिमिट और यू आर नॉट इन द लिमिट. तो अगर आप 1.5 तक चार्ज कर रहे हो तो आपको इस जीएसटी का एग्जामिनेशन मिलेगा. But if you're charging more than 1.5 lakhs, it means no exemption. तो आपको पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा. और नोट में क्लियरली लिख दिया है कि it is with supply, it is intra-state supply. तो इस पे CGST लगेगा as well as SGST लगेगा. Am I clear? Am I clear? पूरे 1,60,000 पे GST लगाना प्लीज. इस क्वेश्चन में सेकेंड क्लियर. हमने पहला कौन सा पढ़ा? हेल्थ केयर सर्विस पढ़ा. दूसरा कौन सा पढ़ा? आर्टिस्ट की सर्विसेज पढ़ा. अब कम थर्ड वन. थर्ड वन, एग्जामिन वेदर जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. 3 पॉइंट दिए. पहला, एकता चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C
5 of the Income Tax Act manages a temple in Rohini, Delhi. It has given on rent a community hall located within temple premises to public for celebration of Tej Mela and कितना rent charge किया 9,500. ये point important है, ये point amendment है, though not in November attempt, it was there in May 18 also, but एग्जाम में अभी भी आ सकता है. अब सुनो, पहले एग्जामिनेशन क्या बताता है. एग्जामिनेशन क्या बताता है कि अगर कोई भी रिलीजियस प्लेस या उसके आसपास की जगह रेंट पे दी गई है, किसको दी गई है? जनरल पब्लिक को रेंट पे दी गई है. कौन दे रहा है? उन्होंने बोला है अगर आप 12 डबल, मतलब कौन उस जगह को मैनेज करना चाहिए? या तो सोसाइटी और चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 डबल ए, या registered trust under section 1023C5, या there's a body corporate under BBN. In that case, अगर तीनों ने मैनेज किया है और ये तीनों वो जगह किस पे दे रहे हैं? किराए पे दे रहे हैं. किन को दे रहे हैं? जनरल पब्लिक को दे रहे हैं. तो फिर उस किराए पे रेंट नहीं, उस किराए पे जीएसटी नहीं लगेगा. इट वॉज एग्जम्प्टेड. बट अमेंडमेंट क्या आया था कि अगर, लिसन टू मी, अमेंडमेंट क्या आया था कि अगर, लेट्स सी द अमेंडमेंट, अगर आपने सपोज उस जगह के रूम्स रेंट पे दे, रूम, तो अगर आप किराया कितना चार्ज कर रहे हो, 1000 या उससे मोर चार्ज करोगे तो जीएसटी लगेगा. या अगर आप सपोज कोई एरिया है, कोई गार्डन है, कुछ रूम है, मतलब कोई कल्याण मंडप है, कोई हॉल है, अगर वो रेंट पे दे रहे हो तो कितना चार्ज करो? 10,000 और मोर पर डे चार्ज कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा. अगर आपने मंदिर के आसपास की कोई शॉप रेंट पे दी है और रेंट कितना चार्ज करो? 10,000 और मोर पर मंथ चार्ज करो तो जीएसटी लगेगा. मतलब फुल्ली एग्जामिनेशन नहीं है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि रूम अगर रेंट पे दे रहे हो और रूम के लिए कितना चार्ज कर रहे हो, 1,000 रुपीज और मोर पर डे तो जीएसटी लगेगा. हॉल रेंट पे दे रहे हो और 10,000 रुपीज और मोर पर डे चार्ज कर दो जीएसटी लगेगा. या शॉप रेंट पे दे रहे हो तो 10,000 रुपीज और मोर पर मंथ चार्ज कर दो जीएसटी लगेगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमने कितना रेंट लिया है? 9,500 लिया है, मतलब वी आर विद इन द एग्जामिनेशन लिमिट, जीएसटी नहीं लगेगा. सी लैंग्वेज देखो, आंसर पढ़ रही हूं. Renting of community hall by Ekta Charitable Trust is exempted from GST as rent is less than ₹10,000 per day. Am I clear? Can I go ahead? Second question पे आ जाओ. Speed Post Services. Second question पढ़ रही हूँ ऊपर. By Department of Post to Union Territory of Daman and Diu. Speed Post Services कौन दे रहा है? Department of Post, मतलब गवर्नमेंट. सुनना, नॉर्मली गवर्नमेंट की सर्विसेज क्या है? एग्जम्प्टेड है एक्सेप्ट फॉर. उसमें पहला क्या है? अगर गवर्नमेंट कौन सी सर्विसेज दे रही है? स्पीड पोस्ट सर्विसेज दे रही है, या एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सर्विसेज दे रही है, या लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रही है, लाइफ इंश्योरेंस, या एजेंसी सर्विसेज दे रही है. किसको दे रही है? गवर्नमेंट को दे रही है या अदर देन गवर्नमेंट को दे रही है? किसको दे रही है? गवर्नमेंट को दे रही है या अदर देन गवर्नमेंट को दे रही है? तो अगर गवर्नमेंट को दे रही है तो एग्जम्प्ट है, या अदर देन गवर्नमेंट को दे रही है तो टैक्सेबल है. स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, life insurance and agency services given to government is exempted but given to other than government is taxable. अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? स्पीड पोस्ट सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट पोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, मतलब गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए जीएसटी हैज बीन एग्जम्प्टेड. सॉल्यूशन देखो, GST is not payable in case of speed post services by Department of Post to Union Territory of Daman and Diu. Am I very clear? Am I clear? Come to third question. Third part. S Limited has given on hire 5 trucks to T2 Transporters of Delhi, a GTA, for transportation of goods.
और कितना रेंट चार्ज किया है? 7,500 पर ट्रक पर डे। बॉस क्लियरली एग्जामिनेशन के लिस्ट में बोल के रखा है कि अगर आपने हायर पे दिया है क्या व्हीकल, किसको दिया है? GTA को दिया है। किस पर्पस के लिए दिया है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर्पस के लिए दिया है, तो उस पर GST नहीं लगेगा। डजंट एग्जम्प्टेड से लैंग्वेज लिख रही हूं। GST is not payable in case of hiring of trucks to T2 transporters. The exemption says that provides exemption to services by way of giving on hire to a goods transport agency means the transportation for goods. अगर मैं कोई भी ट्रक किसको हायर पे दे रही हूँ? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे रही हूँ। फॉर व्हाट पर्पस दे रही हूँ? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो उसके रेंट के ऊपर, चार्जेस के ऊपर GST हैज बीन एग्जम्प्टेड। एम आई वेरी क्लियर? Can I go ahead? Is third question clear? Can I come to fourth question? Come to fourth. See again, I won't be able to go and take you the provision. मैं provision revise करवा सकती हूँ आपको यहाँ पे। Am I clear? Examine the GST is payable in the following independent supply of services. इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज में एजुकेशनल सर्विसेज की बात चल रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात चल रही है। A recognized education institution has conducted an entrance examination for various courses run by it and charge entrance fees for the applicant. बहुत इस important question है ये, क्योंकि दोनों point जो है दोनों ही amendment है and it is for the first time in November 18. समझो, हमने वहां क्या पढ़ा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर किसको सर्विस देता है? स्टूडेंट्स को देता है। किसको देता है? स्टूडेंट्स को देता है, फैकल्टी को देता है, स्टाफ को देता है। तो उनकी सर्विसेज क्या है? एग्जम्प्टेड है। पर यहां पे बात क्या चल रही है? मुझे आपके कॉलेज में क्या लेना है? एडमिशन लेना है। उसके लिए आपने क्या कंडक्ट रखा है? आपने एंट्रेंस एग्जाम रखी है। उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप क्या चार्ज कर रहे हो? एंट्रेंस फीस चार्ज करो। आप समझो, क्या मैं स्टूडेंट हूं? नहीं, अभी तक तो मैंने एडमिशन लिया ही नहीं है, तो मैं इस कैटेगरी में आता ही नहीं हूं। आई एम जस्ट एन एप्लीकेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई विल गेट एडमिशन, देन इफ आई टेक एडमिशन आई विल बिकम अ स्टूडेंट। तो यहां पे अमेंडमेंट रखा है कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है, उसके लिए एंट्री फीस चार्ज कर रही है, उस एंट्री फीस के बाद GST नहीं लगेगा। एम आई क्लियर? देखो आंसर लिख देखते हैं इसका। सर्विस प्रोवाइड बाय an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fees is exempted. Am I clear? Can I go ahead? Can I go ahead? Second, Ramphal Lalaji, an agriculturist, has stored sugar cane in a warehouse. और इन्हें क्या रखा? Sugar. What is sugar cane? Sugar cane is what? Agriculture produce. शुगर केन क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। शुगर केन से शुगर बनता है। शुगर केन तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उन्होंने कहाँ रखा? वेयर हाउस में रखा है। एंड ही हैज टेकन फ्यूमिगेटिंग सर्विसेज इन a said warehouse from Gupta Pest Control for which he has paid concession amount of ₹6,000. Whether इस concession पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा? Again an amendment. अगर आप फ्यूमिगेटिंग की सर्विसेज लेते हो, किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। कहां के लिए? वेयरहाउस के लिए। तीन कंडीशन दी। कितने? तीन। पहला, फ्यूमिगेटिंग सर्विसेज वेयर इन वेयरहाउस फॉर व्हाट? फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इस फ्यूमिगेटिंग सर्विस के बाद GST हैज बीन एग्जम्प्टेड। व्हाट इज फ्यूमिगेशन? पेस्ट कंट्रोल, वो धुआं छोड़ते जो। मतलब ये भी अमेंडमेंट है, ये भी नया पॉइंट ऐड किया है। तो क्या लिखा है देखो, services by way of fumigation in a warehouse of agriculture produce are exempted. In the present case, since Gupta Pest Control provided services by way of fumigation in a warehouse of sugarcane being an agriculture produce, लिखो आपको। मुझे मालूम है कि sugarcane क्या होता है, agriculture produce होता है, पेपर चेकर को मालूम नहीं है, बता क्या हो रहे। और दूसरा, कोई प्रोविजन में agriculture produce वर्ड लिखा है, प्रोविजन में sugarcane वर्ड नहीं लिखा है। Such service has been exempted.
Am I clear? Is question number 4 clear? Can I go ahead? इस एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा है जितना भी हम रिवाइज कर पा रहे हैं? Come to next question. Question number 5. Examine whether GST is exempted on the following independent supply of service. First, Relax and Company, a tour operator की बात चल रही है, provides services to foreign tourists conducted in Kerala. यहाँ प्रॉब्लम हो गया. एग्जामिनेशन लिस्ट बोलता है अगर टूर ऑपरेटर टूर ऑर्गेनाइज करने की क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट को दे रहे हैं, कहां के लिए दे रहे हैं, आउटसाइड इंडिया के लिए दे रहे हैं, तो एग्जेम्प्टेड होता. यहां कहां के लिए दे रहे हैं, केरला के लिए दे रहे हैं. वापस रिपीट कर रही हूं, टूर ऑपरेटर किसको सर्विसेज दे रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट को, कहां के लिए, आउटसाइड. सपोज इराक का टूर प्लान करके दिया, दुबई का टूर मैंने आपका प्लान करके दिया, तो उसके लिए अगर मैं कंसेशन चार्ज करती तो उस पर जीएसटी क्या कर दिया था, एग्जम्प्ट कर दिया था. तो यहां कहां के लिए प्लान किया है, केरला के लिए प्लान किया है, तो इस 1,50,000 पे जीएसटी लगेगा. एम आई क्लियर? आंसर पढ़ते हैं. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर to foreign tourists are exempt from GST provided such services are in relation to a tour conducted wholly outside India. In thus, in given case, GST is not exempted, GST lagega. Am I clear? Can I go ahead? Come to second question. Miss Neha acts as a coach for Indian Sports League, a recognized sports body, for a tennis tournament organized by a superb retail company and received remuneration of rupees 4 lakhs. यहाँ पे किसकी बात करी है, कोच की सर्विसेज की बात की है. तो यहाँ पे बोला जाता है अगर कोच किसको सर्विसेज दे रहा है, रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा है. क्या, कौन सी इवेंट के लिए, स्पोर्टिंग इवेंट के लिए. और वो इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए. जो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, देखो प्रोविजन पढ़ते हैं हम लोग इसके. Service provided by a coach to recognized sports body for consideration in a sporting event and exempt from GST provided such event is organized by recognized sports body. अगर इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करेगा, recognized sports body, तो ही वो इवेंट क्या होगा, तो ही वो कंसेशन क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा. इस केस में कंपनी कौन सी है, कंपनी कौन सी जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, सुपर्ब रिटेल कंपनी. इट्स नॉट रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी. इसे 4 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? श्योर? दिस कंप्लीट्स अगेन योर चैप्टर 4. तभी हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया, एग्जामिनेशन का चैप्टर खत्म किया. एग्जामिनेशन में हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, हमने सबसे पहले एजुकेशनल ना हेल्थ केयर सर्विसेज को लिया, हेल्थ केयर सर्विसेज को लिया, फिर हमने आर्टिस्ट की सर्विसेज को लिया, उसके बाद हम लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विसेज को लिया, स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट की सर्विसेज को लिया, रेंटिंग ऑफ हायर की सर्विसेज को लिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज को लिया, फ्यूमिकेशन की सर्विसेज को लिया है हमने. उसके बाद हम लोगों ने टूर ऑपरेटर की सर्विसेज को लिया एंड कोच की सर्विसेज को लिया. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कैन आई गो अहेड? Can I go to next chapter? Again I am saying, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, I am trying to revise all the question which is asked in last attempt and last RTP, last mock test paper, last practice paper and this attempt RTP and this attempt mock test paper. There's a 93 question का बैंक तैयार किया है. Am I clear? Okay.